Good evening to all of you dear students. How are you? कैसे हैं सब आप? I hope you must be fine. जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि we are practicing on the questions based on time and tense. तो आज ये डे 3 है, आज ये तीसरा दिन है और आज फिर और कुछ क्वेश्चंस पर हम प्रैक्टिस करेंगे और वो सभी क्वेश्चंस आधारित होंगे टाइम एंड टेंस पर. कल के क्लासेस में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे विदाउट क्वेश्चन नंबर आंसर दे रहे हैं सी डी ई एफ. तो ऐसे में मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने सी का आंसर किस क्वेश्चंस का आंसर आपने सी दिया है. तो ये आप निश्चित कर लें कि जब भी आप क्वेश्चंस के आंसर दें तो क्वेश्चन नंबर देना ज़रूरी है. ओके, सो आर यू रेडी? Yes, so let us start the session of today with the question, and the question has now come on the screen for you, and the question is very simple. Columbus blank space America. Question number 26 आ रहा है. That means we have already done 25 questions, 25 questions. अब तक 25 questions हम लोग कर चुके and this is the 26th question. Columbus blank space America. 4 options have been given: discovering, discovers, was discovered, or is it the option D, discovered? Yes. So within 20 to 25 seconds you have to answer. Columbus blank space America 4 options दिए गए हैं और इनमें आपको चूज़ करना है कि which of the 4 options is the most suitable. Columbus blank space America. चूँकि क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, so I am not going to give you more time. Okay, so let me tell you the answer for the question number 26. Yes, you all are correct. The correct answer for the question number 26 is discovered. This one, D, option D will be the correct answer. Okay, so moving ahead, we go to the next question. Question number 27, that is now on the screen for you. You blank space the school late that day. तुम उस दिन स्कूल लेट से. Okay, the options are have reached, the second one reached, option C were reaching, and the option D had reached. Write your answer in the comment box. Yes, make it fast. So let me see who gives the answer first. Okay, you have reached, you were reaching, you had reached. Yes, go on. Okay, you blank space the school late that day. तुम उस दिन स्कूल देर से. ओके, ब्लैंक स्पेस आपको देना है हैव रीच्ड, वर रीचिंग और हैड रीच्ड. यस, लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 27. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रीच्ड. V2. यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और मतलब ये होगा कि उस दिन तुम स्कूल देर से पहुँचे. Moving ahead, we go to the next question. Question number 28, that is now on the screen for you. My father blank space back yesterday, and the options are option A has come, option B came, option C comes, and the last option D had come. What can be the correct answer? Again, the question is very easy. Okay, धीरे धीरे ये क्वेश्चंस टफ होते जाएंगे. ओके, सो माई फादर हैज़ कम, माई फादर केम, माई फादर कम्स, माई फादर हैड कम. विच ऑफ द 4 ऑप्शंस कैन बी द मोस्ट सुटेबल और द करेक्ट वन? माई फादर, यस, yesterday. The correct answer, let me tell you dear student, the correct answer for the question number 28 is option B, this one, came. वर्ब का सेकंड फॉर्म yesterday के कारण. ओके,
तो इस पर ज़्यादा टाइम न देते हुए मैं बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चूँकि द क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, बहुत ही आसान है. सो यू डोंट हैव, और आई होप दैट you must not have any doubt, confusion. Okay, so moving ahead, we go to the next question, question number 29, that is now on the screen. India blank space freedom over 6 decades ago. Decade, a period of 10 years. Dashak. India blank space freedom over 6 decades ago. Ago means pehle. Option A get, option B gets, option C got, option D had got. Which is the correct option? Dear students, write your answer in the comment box. Yes, don't take time. Within 20 seconds, you have to answer this question, question number 29. जो बच्चे पिछले क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाए, क्लास डे 1, डे 2, तो वो क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल है और टेलीग्राम पर उसका लिंक भी भेज दिया गया था. सो गो टू द यूट्यूब चैनल and try to watch all those videos, the classes you have missed. So India get, gets, got, had got. The correct answer, dear students, is option B. Option C, got, got. Second form of the verb. Verb का second form प्रयोग करेंगे. वैसे भी अगो अगर आ जाए सेंटेंस में तो नॉर्मली पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है. दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में आएगा. तो इंडिया गॉट फ्रीडम ओवर 6 डिकेड्स अगो. भारत को आज़ादी मिली या भारत ने आज़ादी लिया, प्राप्त किया 6 दशक से ज़्यादा पहले. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, गॉट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो नो कन्फ्यूजन एट ऑल डियर स्टूडेंट्स. मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And the next question, question number 30, that is now on the screen. When I blank space the window, the bird flew out. When I opened the window, when I opened the window, when I have opened the window, when I had opened the window. Which is the correct answer, dear students? Yes, make it fast. When I open the window. Let me tell you the concept as well as the answer. The bird flew out. अगर ट्री की बात करें तो flew out जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि टेंस पास्ट इंडेफिनिट है. तो जब सेंटेंस का कोई पार्ट पास्ट में हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली पास्ट में ही होगा, नॉर्मली इन 99% ऑफ द केसेस. ओके, सो बहुत ही आसान है कि यहाँ पर वर्ब सेकंड फॉर्म में आएगा. द ऑप्शन शुड बी दिस. एंड द मीनिंग, व्हेन आई ओपन द विंडो, जब मैंने खिड़की खोली पक्षी उड़कर बाहर चली गई. सो द करेक्ट आंसर इज V2, opened, option B. Okay, so moving ahead, we go to the next question, question number 31, that is now on the screen. Prices blank space by 40% last year. पिछले वर्ष कीमतें 40% blank space last year. That is the hint. You have 4 options, 4 options आपके पास हैं. Rises है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, had raised है जो पास्ट परफेक्ट है, raised है जो पास्ट इंडेफिनिट है, और rose है जो पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है. तो C भी सेकंड फॉर्म है और D भी सेकंड फॉर्म है, एंड यू हैव टू चूज द राइट वन. ओके, यहाँ बातें कुछ समझने की हैं. यस, हियर यू विल बी a little bit confused. Prices, rises, had raised, and rose. The correct answer, dear students, let me tell you here, the correct answer for the question number 31 is option D, this one, rose. अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि raised क्यों नहीं? This is also the second form of the verb. ये भी तो verb का second form है, लेकिन फिर raised क्यों नहीं? रेज मतलब होता है उठाना, और रोज जो है, रेज जो है वो रेज का सेकंड फॉर्म है. RAISE फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
R-A-I-S-E-D, second form of the verb, and this is raise मतलब उठाना. It is transitive verb. अब वर्ब के सेक्शन में इस पर डिटेल में बात करूंगा, और इसके साथ ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है. मतलब ये किसी को उठाएगा, खुद नहीं उठेगा. और राइज का मतलब उठना, ये खुद ही उठेगा, किसी को उठाएगा नहीं. दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब. तो राइज मतलब उठना, बढ़ना, और राइज का सेकंड फॉर्म होता है रोज. तो कीमतें पिछले वर्ष, लास्ट ईयर की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, पास्ट को शो कर रहा है. और सेंटेंस अगर पास्ट की बात कर रहा है तो V2 का प्रयोग होगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा नॉर्मली. सो प्राइसेस रोज बाय 40% लास्ट ईयर. पिछले वर्ष कीमतें 40% बढ़ गई, ना कि बढ़ा दी गई. बढ़ा दी गई अगर होता तो फिर पैसिव का प्रयोग होता. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, रोज. राइज, रोज, राइजन. रेज, रेज्ड, रेज्ड. और दोनों का डिफरेंस, राइज मीन्स खुद से बढ़ना और रेज का मतलब बढ़ाना. ओके, और जैसा कि आपको पता है कि रोज नाउन भी है एंड दैट मीन्स गुलाब. ओके, तो रोज़ के दो मतलब हो गए, एक तो फ्लावर्स नेम है और दूसरा राइस का सेकंड फॉर्म है. डियर स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज नाउ ऑन द स्क्रीन. अ thief, blank space, into our garage last night. The options are: option A, breaks; option B, broke; option C, broken, has broken; and option D, had broken. Yes, take your time and try to answer the question. And again, the question is very simple, and I have already given you the hint. And the hint is last night. A thief breaks, broke, has broken, had broken. और यहाँ मैं बता दूँ डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ ब्रेक का मतलब तोड़ना नहीं है. ओके, break into, it is a phrase. okay, and break into का मतलब होता है बलपूर्वक घुस जाना, प्रवेश करना, चोरी की नीयत से घुसना. इसे सेंधमारी करना भी कहते हैं. तो एक चोर पिछली रात हमारे गैरेज में ब्लैंक स्पेस. Yes, you must have guessed the answer, and the correct answer for the question number 32 is option B, this one, dear student. B, broke, second form of the verb. क्यों? Last night था. Moving ahead, we go to the next question. Question number 33. While Krishna, blank space, Radha danced. Again, the question is very simple. और आज के ही इस क्लास में मैं बता चुका हूँ इसके बारे में कि जब कोई एक पार्ट, अब आप सोचिए, मैं आगे नहीं बोलने वाला. जब कृष्ण, ब्लैंक स्पेस, राधा नाचती थी. Yes, without wasting time, you can get to the correct answer. And the correct answer for the question number 33 is, yes, you are right, dear students. Option A, sang. Sang. Okay? So congratulations to all the students who are doing well or who have given the right answer. So the correct answer is option A, sang, V2. जब कृष्ण गाते थे, sang, तो राधा नाचती थी. I hope you must not have any doubt. Moving ahead, we go to the next question. Question number 34. When you came in, जब तुम अंदर आए, I blank space, am writing. Is it the option B, was writing? Or is it the option C, have written? Or is it the option D, had written? What can be the correct answer? Dear students, make it fast. Write your answer in the comment box. Okay, again the question is very easy. When you came, if you are alert, dear students, if you are attentive, अगर क्लास में आप attentive हैं तो the questions, any question that is very easy, but if you are not attentive, it will be difficult for you. Okay, so the correct answer, when you came in, जब तुम अंदर आए, मैं लिख रहा हूँ A,
मैं लिख रहा था, बी मैं लिख चुका हूँ, सी या मैं लिख चुका था। द करेक्ट आंसर विल बी बी was writing। और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन डी हो जाए had written, बट इन दो ऑप्शंस में द मोर सुटेबल वन इज ऑप्शन बी was writing। सो 34 का आंसर होगा ऑप्शन बी was writing। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 दैट इज नाउ ऑन द स्क्रीन and the question says, it blank space this morning when I got up. Again the same type of questions. Yes, attentive है तो within fraction of minutes you can solve it. So it this morning when I got up, जब मैं सुबह उठा, मतलब आज सुबह, this morning, it is raining, it rains, it has rained, or is it the option D, was raining? Okay, take your time, write your answer in the comment box with the question number. Yeah, स्टूडेंट बहुत सारे जुड़ गए हैं, लेकिन उनमें से जितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं लाइक्स की संख्या कम है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो, द चैनल with as many friends of yours as possible. Yes, let me tell you, I am going to tell you the answer. The answer for the question number 35 is, option D, was raining. Option D, was raining. It was raining this morning when I got up. जब मैं आज सुबह उठा तो वर्षा हो रही थी. Yes, you are right. Moving ahead, we go to the next question. Question number 36, that is now on the screen. I blank space my beard when the telephone bell rang. Again, the same type of question. Yes, use your common sense and you will get to the answer. I blank space my beard when the telephone bell rang. जब टेलीफोन की घंटी बजी मैं अपने दाढ़ी, ओके, यस, मैं अपनी दाढ़ी बना रहा था, was shaving. The correct answer is option C, was shaving. Congratulations to all the students who have done well, who have given the right answer. Moving ahead, we go to the question number 37. That is now on the screen for you, dear students. She found that the baby blank space bitterly, and the options are cries, cried, is crying, or the option D, was crying. She found that the baby cries. उसने पाया कि बच्चा फूट फूट कर, बिटरली, ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोता है. cried, रोया, रो रहा है या रो रहा था. Write your answer in the comment box, dear students. Make it fast. Yes, all the questions in the today's class, the questions are very easy. So enjoy the class, be attentive, and I assure you that you will solve all the questions correctly. 37. The correct answer is, yes, it's very obvious. The correct answer is option D, was crying. Option D, उसने पाया कि बच्चा फूट फूट कर रो रहा था. Yes, you are right. Moving ahead, we go to the next question. Question number 38. That is now on the screen. My mother, blank space, when I reached the station. Yeah. जब मैं स्टेशन पहुंचा मेरी माँ सोई, slept, has slept, सो चुकी है, और had slept, सो चुकी थी, या was sleeping, सो रही थी, यानी सोई हुई थी. Okay, 38. Dear students, yes, be attentive. और अगर इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखें तो टाइम एंड टेंस के कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर होंगे कि +2 के एग्ज़ाम के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर बैठेंगे तो ये सारी क्वेश्चंस जो कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, that will be those exams will be going to be very easy for you. So my mother, yes, was sleeping. The correct option is option D, was sleeping. मेरी माँ सोई हुई थी जब मैं स्टेशन पहुँचा. ओके, तो नॉर्मली अगर सेंटेंस का कोई एक पार्ट पास्ट इंडिफिनिट में है तो दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस में होगा. ओके, लेकिन अगर कॉमन सेंस की बात करें, इफ़ यू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द क्वेश्चन, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर क्वेश्चंस के भाव को आप समझ लें, यू विल गेट
the answer very easily. Okay, so let us go ahead and take the next question. Question number 39 that has now come on the screen for you. The train blank space before I reach the station. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन हैज़ लेफ्ट खुल चुकी है, हैड लेफ्ट खुल चुकी थी, लेफ्ट खुली, लेफ्ट्स लेफ्ट्स यस द करेक्ट आंसर। और मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है कि जो पुराने में पुराना हो, जो पास्ट में पास्ट हो, उसे हम पास्ट, अब आगे मैं नहीं बोलूँगा, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट, had left. Is it the option C left or is it the option D lefts? Write your answer in the comment box. Yes, dear students, make it fast. Yes, the correct answer is option B, had left. पास्ट में अगर दो घटनाएं घट जाएं, उन बच्चों के लिए जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया है इस क्लास को, या जिनके पास टेंस की पहले की जानकारी नहीं है। पास्ट में अगर दो घटनाएं घट जाएं, मतलब पास्ट में जो ज़्यादा पास्ट हो उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो पुराने में नया हो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। सो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल गई थी, ये दोनों घटनाएं पास्ट में हुई, दोनों घटनाएं पुरानी हैं। मेरा पहुंचना भी पुराना है यानी पास्ट में है, और ट्रेन का खुलना भी पुराना है, पास्ट में है। लेकिन जो पुराने में ज़्यादा पुराना है वो ट्रेन का खुलना है, तो जो पुराने में पुराना होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो पुराने में नया है वो पास्ट इंडेफिनिट में। और वैसे भी देखें कि बिफोर के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट नॉर्मली आता ही है, तो इसके पहले वाला, बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। I hope you are getting my point. You must not have any confusion, doubt. And if you have any doubt, write your doubt in the comment box and I will try to solve it. So moving ahead, we go to the next question. Question number 40, the match blank space before I reach the playground. Dear student, don't waste time. Within 10 seconds you have to answer this question, because the same type of questions are coming. Just the correct answer is option A, had begun. Begin, began, begun. मैं शुरू हो चुका था, had begun before I reached the playground. मेरे playground में पहुंचने से पहले। I hope that you must not have any confusion. तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 41. I blank space at this picture for 5 minutes. For 5 minutes, and the options are option A, look, option B, I am looking, and option C, have been looking, and option D, was looking. Dear students, what is going to be the correct answer? Yes, write your answer in the comment box. Yeah, you can take your time, and for this question you may take 20 seconds. I blank space at this picture for 5 minutes. 5 मिनट से मैं इस तस्वीर को देख, look, am looking, have been looking, was looking. Take your time and don't fail to share the channel. Don't fail to share this class with as many friends of yours as possible. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़े हैं तो वहाँ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका प्रॉफिट ले सकें, वो मतलब इसका एडवांटेज लें वो। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 41 इज ऑप्शन सी, हैव बिन लुकिंग फॉर 5 मिनट्स के कारण। और मैंने आपको बताया कि जब कंटिन्यूस एक बार आए तो उसे कंटिन्यूस में बनाते हैं, और अगर एक से अधिक बार आए, जैसा कि बता रहे हैं 5 मिनट से ही काम चल रहा है, तो ऑप्शन सी होगा, हैव बिन लुकिंग। मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 42 that is now on the screen for you. I blank space to learn English several years. यहाँ पर several के पहले for का प्रयोग करेंगे, वो मिस हो चुका है यहाँ पर, टाइपिंग एरर है ये। सो मैं कई वर्षों से अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश, यस द ऑप्शंस आर हैव बीन ट्राइंग, बी
am trying, C tried, and D tried. Yes, write your answer in the comment box. Yes, the correct answer for the question number 42 is have been trying. Dear students, congratulations, you are doing well. Congratulations to all those students who are giving or who have been giving the right answer, 42. Now, we are going to the next question, question number 43 that has now come on the screen. The washerman, blank space, our clothes. It is not out, O-U-R. It is not out, it is R. The washerman are clothes since 1999. 1999 से धोबी हमारे कपड़े is washing, was washing, has been washing or has washed. The question is very easy. So without wasting time, I'm going to tell you the answer, the correct answer. Yes, the correct answer is option C. Dear students, has been washing since 1999 के कारण. Okay. So has been washing, option C will be the correct answer. Moving ahead, we go to the next question, question number 44. The Chinese for war for many years before they attacked. यहाँ पर इंडिया छूट गया है. भारत पर आक्रमण करने से पहले चीनियों ने युद्ध के लिए कई वर्षों तक prepared, had prepared, or is it the option D, had prepared? Yes, again the question is very easy. Yes, okay, dear students, take your time, write your correct answer in the comment box. और वीडियोस को दोबारा ज़रूर देखें if you want to have a good command over time and tense. Okay? So जो नए बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस पहले के क्लासेस नहीं देखे, डे 1 डे 2 के वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं. So go to the channel and do watch the videos which you have missed. Yes, the correct answer for the question number 44 is option D, had prepared. चीनों ने युद्ध के लिए कई वर्षों तक तैयारी की थी भारत पर आक्रमण करने से पहले. Okay, moving ahead, we go to the next question, 45. He blank space, that's why he looks tired. Overwork का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा काम करना. Overworks present indefinite. Is overworking present continuous, has overworked present perfect, and was overworking past continuous tense. So 4 options are there and you have to give the right answer in the comment box, dear students. He overworks, that's why he looks tired. That is why का मतलब होता है यही वजह है कि, यही कारण है कि. तो जो नए शब्द आ रहे हों क्वेश्चन में, पेन एंड पेपर का होना ज़रूरी है क्लास के दौरान, तो वो ज़रूर नोट डाउन करते चलें. और यहाँ पर कुछ बातें समझनी होंगी जब मैं आंसर बताऊँगा, और हो सकता है इसमें से इस क्वेश्चन में आपसे गलतियाँ भी हों. ही ब्लैंक स्पेस, दैट इज़ वाई ही लुक्स टायर्ड. यही वजह है कि वह थका हुआ दिखता है. दैट इज़ वाई ही लुक्स टायर्ड. यही वजह है कि वो थका हुआ दिखता है. ही ओवरवर्क, ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है इसलिए, ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, इज़ ओवरवर्किंग इसलिए, या उसने ज़रूरत से ज़्यादा काम किया है इसलिए. द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 45 इज़ ऑप्शन सी, हैज़ ओवरवर्कड. और यही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बातें मैं किसी और क्लास में डिटेल बताऊंगा. अभी थोड़ी सी उसकी झलक ले लें. एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट होता है, लेकिन उसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट है. लेकिन ये है पास्ट, और पास्ट की कोई घटना ऐसी हो जिसका इफ़ेक्ट प्रेजेंट में महसूस किया जाए, तो उसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं करते हैं. इसलिए यहाँ पर हैज़ ओवरवर्कड होगा कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा काम किया है, और जो काम किया है उसका इफ़ेक्ट ये है, दैट्स वाई ही लुक्स टायर्ड, वो थका हुआ दिखता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई. मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. मार्क blank space in Canada since December, and the options are, option A is B has been, C was, D will be. मार्क कनाडा में है दिसंबर से. ओके, जैसे मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, वो 5 दिनों से अनुपस्थित है.
तो मार्क कनाडा में दिसंबर से है. राइट और आंसर इन द कमेंट बॉक्स. डियर स्टूडेंट्स, ओनली 4 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग. ओके, 46 का आंसर क्या होगा? Let me tell you the answer. The question number 46 and the answer is B. Has been. Has been. दिसंबर से मार्क कनाडा में है. इंडिफिनिट इनटू इंडिफिनिट इज इक्वल टू परफेक्ट. ये बात मैं आपको बता चुका हूँ ऑफलाइन क्लास में. मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 47. अ मैन ब्लैंक स्पेस नोन बाय द कंपनी ही ब्लैंक स्पेस. 2 फिलर्स हैं. कल भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे. 2 ब्लैंक स्पेस है, लेकिन आपके +2 के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. ये थोड़ा डिफिकल्ट है. अ मैन नोन बाय द कंपनी ही ब्लैंक स्पेस. द ऑप्शंस आर इज और दूसरे में किप्स, वॉज, केप्ट, इज, केप्ट, इज, कीपिंग. यस, अ लिटिल बिट ट्रिकी. फॉलो योर कॉमन सेंस एंड यू विल गेट द राइट आंसर. ये एक प्रोवर्ब है, यह एक कहावत है. ओके, यस. सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए. पहले भी इसका प्रयोग करेंगे और दूसरे में किप्स का. अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही किप्स. अ मैन सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसलिए इसका प्रयोग होगा. और बाय द कंपनी ही किप्स, कंपनी मतलब साथ. यहाँ कंपनी का मतलब कंपनी नहीं है जो आप समझते हैं. यहाँ कंपनी का मतलब संग. अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही किप्स. एक आदमी की पहचान होती है उस संगत से जो वो रखता है. मतलब आपके मित्र जैसे होंगे उससे पता चलेगा कि आप कैसे हैं. आपका मित्र अगर बेईमान है, अगर वो लहरिया कट बाइक चलाता है, अगर वो दिन भर व्हाट्सएप पर लगा रहता है, अगर वो झूठ बोलता है, अगर वो गुटखा खाता है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा समाज को कि आप भी वैसे ही हैं. अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. एक आदमी जाना जाता है उस संगत से जो संगत वो रखता है, यानी चोर चोर मौसेरे भाई. ओके, तो जब भी आप साथी को चूज़ करें, आप देखें कि आपके कंपनी में किस तरह के लोग हैं, क्योंकि जिस तरह के लोग आपके साथ होंगे उससे आपके कैरेक्टर का पता चलेगा. अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. सो मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 48 दैट इज नाउ ऑन द स्क्रीन. आई ब्लैंक स्पेस फुटबॉल सिंस आई वॉज 5 years old. जब मैं 5 साल का था तब से फुटबॉल प्ले, एम प्लेइंग, हैव बिन प्लेइंग, or is it the option D, had played? Yes, take your time. Only 2 questions are remaining. Yes, make it fast. Yes, again, I congratulate all the students who have given the right answer. Yes, well done, dear students. You are doing well, fantastically well. I football since I was 5 years old. जब मैं 5 साल का था तब से फुटबॉल. Yes, yes. Yes, the correct answer is option C, have been playing. Have been playing. जब मैं 6 साल का था तब से फुटबॉल खेल रहा हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे. मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 49. They know each other well because they friends for years. वे लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि वे वर्षों से मित्र हैं. Is it the option A, are? Or is it the option B, have been? Or is it the option C, were? Or is it the option D, had been? Write your answer in the comment box, dear students. Yeah, make it fast. अटेंटिव होना क्लास में बहुत ज़रूरी है. और जितने स्टूडेंट्स ऑफलाइन में हैं, मैं लगातार देख रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास वो अटेंड नहीं कर रहे हैं. लगभग 20 to 30% स्टूडेंट्स ही ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं. तो जब आपका ऑफलाइन क्लास होगा तो क्लास तो मैं लूँगा ही, दूसरा क्लास भी मैं लूँगा. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हैव बिन. हैव बिन फॉर ईयर्स. वे लोग वर्षों से मित्र हैं. दैट मीन्स हैव बिन. मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Question number 50. When water blank space, the liquid blank space into vapor, boiled changed, is boiled changes, was boiled changed, boiled was changed. What will be the correct answer? Double feelers, take your time. You can take 30 seconds. Okay? Yes, try to give the right answer. Okay? When water, जब पानी, तो liquid, wash में, yes. Okay, take your time. Dear students, should I tell you the answer? Okay, the correct answer for the question number 50 is, that is the last question of this live session. The answer for the question number 50 is option B. When water is boiled, जब पानी को उबाला जाता है तो लिक्विड जो है वो वाश में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इज बॉइल्ड चेंजेस. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और पहले के क्लासेस में बाकी 25 क्वेश्चंस हुए थे. आज 26 to 50 मतलब 25 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किए. आपने आंसर फटाफट दिए और बहुत ही बेहतर सेशन रहा जहाँ तक मुझे लगता है. बट व्हाट अबाउट द क्लास इन योर ओपिनियन? तो आपके ख्याल में ये क्लास कैसा रहा? डू राइट, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं और जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न है इस वीडियो को जितनी बार चाहें आप देखें ताकि सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए, इसलिए देखना ज़रूरी है. So I hope that you must not have any doubt, dear students. So that's all for today, and we shall be meeting very soon in the next class. So till then, goodbye. Take care of yourself. Have a good sleep. Have a sound sleep. Okay. Thank you so much.